خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین. ہاں عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نکالیں گے مقدس پیدائش کی کتاب اور اس کا 49 باب اور اس کی 10 آیت. پرانا عہد نامہ مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 49 باب اور اس کی 10 آیت مبارک. ایک ہی آیت ہے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے. اور قومیں اس کی متی ہوں گی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی آسمانی برکت آئے. آمین. نہیں تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کے اندر کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور سن کر اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں جی؟ مبارک ہیں. جی محض کلام ہی نہیں لیکن یہ کلام قدرت رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے جی؟ یہ جوے توڑتا ہے، بندھن توڑتا ہے. اور آج ہم جس مضمون پر بات کرنے والے ہیں وہ شیلو ہے. وہ کیا ہے جی؟ شیلو. یہ کم لوگ اس گواہیوں کو جانتے ہیں. شیلو کا مطلب کیا ہے؟ ہم آج اس کو گہرے مفہوم کو دیکھیں گے. تو میرے عزیزو، شیلو عبرانی زبان سے ہے. اس زبان سے ہے، عبرانی زبان سے ہے، جس کا بنیادی مفہوم یہ ہے جس کا حق ہے. جس کا کیا ہے جی؟ حق ہے. جس کو اختیار دیا گیا. جس کو اختیار دیا گیا. جس کے لیے بادشاہی مقرر ہے. وعدے کا وارث. کیا جی؟ وعدے کا وارث. اور یہ معنی رکھتا ہے شیلو. جو کوئی عام لفظ نہیں، جو کوئی شہر کا نام نہیں میرے عزیزو، یہ کوئی وقتی لقب نہیں میرے عزیزو، بلکہ یہ ایک شخص کی طرف اشارہ ہے. اس کی طرف کی ایک شخص کی طرف اشارہ ہے. اور وہ شخص ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح. ہمارا خداوند یسوع مسیح. جب بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کے صفحات کھلتے ہیں تو وہاں ایک خاموش مگر طاقتور اعلان چھپا ہے. ایک ایسا اعلان جو نہ میرے عزیزو تلوار سے بولا گیا، نہ تخت سے کہا گیا، بلکہ نبوت کے منہ سے بولا گیا. جس کے نبوت کے منہ سے بولا گیا. تو مقدس یعقوب جو مرنے کے قریب تھا وہ اپنے بیٹوں کو برکت دیتا ہے. کیا دیتا ہے جی؟ برکت دیتا ہے. لیکن وہ صرف ماضی کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ مستقبل کو چھو رہا تھا. کس کو چھو رہا تھا؟ مستقبل کو چھو رہا. وہ اس بادشاہ کو دیکھ رہا تھا جس کی بادشاہی وقت کی قید میں بند نہیں ہے. وہ یہودا سے کہتا ہے عصا تجھ سے جدا نہ ہوگا. عصا تجھ سے جدا نہ ہوگا. عصا تجھ سے جدا نہ ہوگا. اور میرے سیدھو آگے لکھتا ہے کہ یعنی اختیار رہے گا. یعنی کیا رہے گا جی؟ اختیار رہے گا، حکمرانی رہے گی، فرمان رہے گا. لیکن پھر وہ ایک حد کھینچ دیتا ہے. کیا کھینچتا ہے جی؟ حد کھینچ دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب تک شیلو نہ آئے، جب تک شیلو نہ آئے، یہاں بادشاہی کی کہانی بدل جاتی ہے. بادشاہی کی کہانی کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے. یہاں نسلوں کی
हुक्मरानी खत्म हो जाती है, यहाँ इंसानों के ताज उतर जाते हैं और शिलो की बादशाही शुरू हो जाती है। शिलो की बादशाही शुरू हो जाती है। नंबर 3, शिलो और बादशाही का हक। शिलो और बादशाही का हक। शिलो वो नहीं जो मेरे जिदो वोट, जो कलीसिया मुंतहिब होकर, जो लोग मुंतहिब होकर इकट्ठे होकर वोट डालें और बादशाह को मुंतहिब करें किसी कुर्सी पर बैठाने के लिए। मेरे जिदो शिलो वो नहीं जिसने तख्त पर कब्जा किया। शिलो वो है जिसके लिए तख्त पहले से मुकर्रर था, जिसके लिए इख्तियार आसमान में लिखा जा चुका था। इसलिए शिलो को बादशाह बनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बादशाह पैदा हुआ, वो बादशाह पैदा हुआ। यही वजह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो मजूसियों ने ये नहीं पूछा हेरोदिस के महल के अंदर आकर कि क्या कोई बादशाह पैदा हुआ है, बल्कि उन्होंने क्या पूछा कि वो कहाँ है जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ। तो मेरे से ये शिलो की पहचान है। ये किसकी पहचान है? शिलो की पहचान है। यही बादशाही का हक है। नंबर 4, एक ऐसी बादशाही जो खत्म नहीं हो सकती, जो खत्म नहीं हो सकती। दुनिया की बादशाहियां सरहदों से पहचानी जाती है। किससे पहचानी जाती है? सरहदों से पहचानी जाती है, फौजों से महफूज की जाती है, कवानीन से चलाई जाती है। लेकिन शिलो की बादशाही मेरे जिदो दिलों पर कायम होती है। किस पर? दिलों पर कायम होती है। जमीन पर हुकूमत करती है और रूह को आजाद करती है। रूह को क्या करती है? आजाद करती है। ये बादशाही तलवार से नहीं फैलती, ये सलीब से कायम होती है। किससे? सलीब से कायम होती है। क्योंकि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को अगर फतह करे तो वो बादशाही, जो बादशाह होता है वो अपने साथियों के साथ मिलकर तलवार से फतह करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वो फतह तलवार से नहीं बल्कि हलीमी से की, और उसने मार खाई, कोड़े खाए, हाथ और पांव में कील ठुकवाए और हमारे और दुनिया के लिए सलीब पर जान कुर्बान कर दी। वो बादशाह मेरे जिदो तलवार से बिना फतह करता है और कुर्बानी देकर फतह करता है। आमीन। तो मेरे जिदो जब शिलो तख्त पर बैठा तो वो सोने के तख्त पर नहीं बैठा, वो सलीब पर बैठा। किस पर बैठा जी? सलीब पर बैठा। और सलीब से उसने ऐलान किया कि दुनिया का आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये वो बादशाही है जिसका हक कोई छीन नहीं सकता, जिसे वक्त मिटा नहीं सकता, जिसे मौत शिकस्त नहीं दे सकती। क्योंकि जब मेरा खुदावंद यीशु मसीह मरा तो जब जिंदा हुआ तो उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, तेरा ढंग कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। आमीन। और नंबर 5, कौमें उसकी फरमा बरदार होंगी। कौमें उसकी क्या होंगी जी? फरमा बरदार होंगी। यकूब ने कहा था कि कौमें उसकी फरमा बरदार होंगी। ये कोई मेरे जिदो शायरी नहीं थी, जो कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये एक बादशाही ऐलान था। आज दुनिया के हर कोने में, हर जबान में, हर कौम में, हर नस्ल में इसी शिलो का नाम लिया जाता है। कुछ झुककर, क्या है जी? कुछ झुक कर लेते हैं, कुछ जिद ना लेंदे ने कि नहीं असी खुदा दा बेटा कहने वो की कहते, वो कहते ये शिरक है। वो क्या है जी? शिरक है। लेकिन शिरक का अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो वो है किसी में शरीक होना, किसी में शरीक होना। और मेरे जिदो लेकिन एक दिन आएगा कि हर जबान इकरार करेगी शिलो ही बादशाह है, शिलो ही बादशाह है। नंबर 6, बादशाही का फैसला। आज शिलो तख्त नहीं मांगता, वो दिल मांगता है। वो क्या मांगता है? दिल मांगता है। वो कहता है जा तू मुझे अपना बादशाह मान ले, जा फिर अपने दिल पर खुद हुकूमत कर। ये इंसान से कह रहा है, कहता जा मुझे अपने दिल में बैठा ले, जा अपने दिल पर खुद बादशाही कर। लेकिन याद रखो कि इंसान खुद का अच्छा बादशाह नहीं बन सकता। असल सुकून, असल अमन, असल आजादी सिर्फ उसी बादशाह में है जिसका हक है, जिसका हक है। तो मेरे जिदो आज हम किसी इंसान की नहीं बात सुन रहे, आज हम उस कलाम को सुन रहे हैं जो नस्लों से पहले बोला गया, जो नस्लों से पहले बोला गया।
और जिसने तरीक को मोड़ दिया, जिसने तरीक को मोड़ दिया। अगर हम पैदाइश का हवाला जो मैंने पढ़ा है 39 बाब उसकी 10 आयत की बात करें तो एक इसी तरह की और गवाही हिजकिय्येल 21 और 27 में भी लिखी हुई है। हिजकिय्येल 21 और 27 में भी लिखी हुई है। वहां पर पता क्या लिखा हुआ है? खुदा ने पाक रूहुल कुदस के वसीला से ये नबूवत हिजकिय्येल के वसीला से भी की। अगर हम मुकद्दस हिजकिय्येल नबी का सहीफा उसका मेरे से तो 21 बाब उसकी 27 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मैं ही उसे उलट उलट दूंगा, मैं ही उसे उलट उलट दूंगा, पर यूं भी न रहेगा, और वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। आमीन। ये श्लोक की दूसरी गवाही छुपी हुई है। ये मेरे जिदो और जबूर 110 उसकी पहली आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, ये दाऊद से कहा गया था, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन। इसलिए मेरे जिदो तो बादशाही किसी ताकतवर को नहीं मिलती, बादशाही उसी को मिलती है जो हकदार है, जो हकदार है। इसलिए खुदावन ने मेरे जिदो दाऊद से जे मेरे जिदो वादा किया। अगर हम दूसरा सैमुएल उसका 7 बाब उसकी 12 और 13 पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे, जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा, उसकी सल्तनत को क्या करूंगा। और तेरा के अंदर लिखा है वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा, और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। आमीन। तो मेरे से तो जानी तेरे बाद तेरी नस्ल से एक को उठाऊंगा और इसकी बादशाही को कायम रखूंगा, और उसकी बादशाही हमेशा की होगी, उसकी बादशाही हमेशा की होगी। तो मेरे जी तो लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात है कि दाऊद की बादशाही तो खत्म होगी, दाऊद की बादशाही खत्म हो गई है। सुलेमान का तख्त भी टूट गया है, लेकिन वादा खत्म नहीं हुआ, लेकिन वादा खत्म नहीं हुआ। इसलिए खुदावंद मेरे जिदो वादा तख्त का नहीं था, वादा शिलो का, वादा शिलो का था, यानी जिसका हक था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत की इब्तिदा भी यूं की जा पाए तो मत्ती 4:17 में लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु ने ये नहीं कहा सिर्फ माफी मांगो, बल्कि कहा कि हुकूमत बदल दो। क्या बदल दो? हुकूमत बदल दो, क्योंकि गुनाह ही छोड़ना नहीं बल्कि अपनी बादशाही छोड़ना है। जब इंसान मेरे दिल को गुनाह करता है तो गुनाह इंसान के दिल पर बादशाही करता है। क्या करता है? जब कायन ने हाबिल को मारा तो उसने यहोवा ने क्या कहा कि गुनाह तेरे दरवाजे पर धबका बैठा है। हालेलुया। वो बादशाही करता है। जब इंसान अपनी सोचों में गिर जाता है, गुनाह उसकी सोचों में आ जाता है, जमीर में आ जाता है, तो गुनाह उस बदन पर क्या करता है? बादशाही करता है। और तो मेरे जिदो आज अगर हम अपने आप को नजात याफ्ता कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बादशाही के ताबे भी हैं? क्या हम शिलो के ताबे भी हैं? क्या हम बादशाही में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं? और मेरे जिदो अगर हम रोमियो 10 बाब उसकी 9 आयत पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अगर तो अपने मुंह से इकरार करे, अगर तो अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और दिल से ईमान लाए तो नजात पाएगा। क्या पाएगा जी? नजात पाएगा। और मेरे से तो अगर हम फिलिपियों 2 बाब उसकी 9 और 11 पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। किसे सरबुलंद किया? खुदावंद यीशु मसीह को। और आगे लिखा है, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, सब नामों से आला है। और आगे लिखे ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके,
यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, आमीन, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और 11 के अंदर लिखा है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। यीशु मसीह क्या है जी? खुदावंद है। यानी बादशाही में फर्मा बरदारी जरूरी है। बादशाही में क्या है जी? फर्मा बरदारी जरूरी है। तो मेरे जी तो यीशु सिर्फ मनजी नहीं, वो खुदावंद भी है। वो क्या है जी? खुदावंद है। खुदावंद का मतलब पता क्या है? मालिक। क्या है जी? मालिक, हाकम, बादशाह। जहां शिलो बादशाह होता है वहां पकीजगी लाजमी होती है, वहां पकीजगी लाजमी होती है। इसलिए अगर हम इब्रानियों 12 बाब उसकी 14 ऐड पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पकीजगी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंत को ना देखेगा, कोई खुदावंत को ना देखेगा। तो मेरे से तो और पकीजगी के बगैर मेरे से तो कोई भी खुदावंत को नहीं देख सकता। पकीजगी रस्म नहीं, बादशाही का सबूत है, बादशाही का सबूत है। इसलिए अगर हम पहला पतरस उसकी पहली ऐड और 15 से 16 को पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर बहुत कुछ मिलता है। निकाले मेरे साथ पहला पतरस उसका एक बाप उसकी 15 से 16 है। पहला पतरस खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो जी? पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हूं इसलिए मैं पाक हूं। हालेलुया। और खुदावंत के पाक कलाम में अगर हम देखें तो और भी बहुत सी ऐसी शहादतें मिल जाती हैं। तो मेरे से तो बादशाही में गुनाह को बर्दाश्त नहीं किया जाता, गुनाह को बर्दाश्त नहीं किया जाता, समझौते को कबूल नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया के बादशाह सोने के तख्त पर बैठे हैं, लेकिन शिलोह किस पर बैठा है? सलीब पर बैठा है। किस पर बैठा? सलीब पर बैठा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर कुर्सियों 2 बाप उसका 15 ऐड पढ़े तो वहां पर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरबला तमाशा बनाया, बरबला तमाशा बनाया और सलीब के स्वाब से उन पर फतह जापी का शादियाना बजाया। आमीन। और इसी तरह यूहन्ना 19:19 में अगर देखें तो वहां पर लिखा है कि पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया, उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह है। इसलिए सलीब पर रियासतों और इख्तियारों को शिकस्त दी गई। क्या दी गई थी? शिकस्त दी गई। यही असल तख्त है, यही असल बादशाही है मेरे जिदो। इसलिए मुकाशफा 15 बाब और 11 बाब उसकी 15 में यूं लिखा हुआ है कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। अब्दुल अबाद क्या करेगा? बादशाही करेगा। ये शिलोह की आखिरी फतह है, ये शिलोह की आखिरी फतह है। अगर हम दानिएल 7 बाब उसकी 13 से 14 ऐड को पढ़े तो वहां पर भी एक मेरे से तो बहुत ही खुदा की हजूरी में एक गवाही छुपी हुई है। अगर हम दानिएल उसका 7 बाब उसकी 13 से 14 ऐड पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानत आसमान के बादलों के साथ आया, आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए, उसके हजूर 14 के अंदर लिखा है, और सल्तनत और हशमत ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है
जो जाति ना रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। हालेलुया। इसलिए मेरे जीदो खुदा के कलाम के अंदर इसी तरह बहुत सी ऐसी बातें छुपी हैं। अगर इसलिए शिलो कोई आम लफ्ज नहीं, ये एक आसमानी ऐलान है। ये क्या है जी? आसमानी ऐलान। जब तक शिलो ना आए, यानी जब तक असल हकदार ना आए, जब तक वो ना आए जिसके लिए तख्त रखा गया है, ये ऐलान हमें बताता है कि दुनिया का निजाम आर्जी है। दुनिया का निजाम आर्जी है, लेकिन खुदा का मंसूबा दायमी है। खुदा का मंसूबा क्या है जी? दायमी है, क्योंकि खुदा ने शिलो को मुकर्रर किया। इसी खुदा ने तुम्हें भी मकसद के लिए पैदा किया। अगर हम यिर्मयाह 1:5 पढ़े तो वहां पर जब यिर्मयाह को खुदावन ने बुलाया तो उसने आगे टाल मटोल की। क्या मत की? टाल मटोल की थी, लेकिन खुदावन का जवाब वहां पर सख्त था। वहां पर लिखा है, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बातन में खलक किया। बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। मैं तुझे क्या था? जानता था। और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। आमीन। तो मेरे सीधो कलीसिया ये ना समझे कि नजात ही सब कुछ है, लेकिन नजात दरवाजा है, कार नहीं। नजात क्या है? दरवाजा है, घर नहीं। खुदा ने तुम्हें सिर्फ जहन्नम से बचाने के लिए नहीं, बल्कि बादशाही में शामिल करने के लिए बचाया। तो अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़े, जो बाइबल मुकद्दस का दिल है, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कुलसियों 1 उसकी 13 पढ़े तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, निकाले मेरे साथ कुलसियों 13 कुलसियों 1 उसकी 13 नया नामा कुलसियों रूस रसूल का कुलसियों के नाम खत, उसका 1 उसकी 13 को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, उसी ने हमको तरीके के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। हालेलुया। इसकी बादशाही है जी, अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, और जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी भी हासिल है। आमीन। उसी ने हमको क्या किया? तरीके के कब्जा से छुड़ाकर। दुनिया मेरे जिदो तख्त को ताकत से जोड़ती है, लेकिन खुदा तख्त को कुर्बानी से जोड़ता है। हालेलुया। किससे जोड़ता है? कुर्बानी से जोड़ता है। सलीब मेरा जो शिकस्त नहीं, हमारे लिए फतह है। हमारे लिए क्या है? फतह है। जहां शिरो ने साबित किया है कि असल इख्तियार क्या होता है। अगर हम मत्ती 28 उसकी 18 से 20 को पढ़े तो वहां पर भी मेरे जिदो एक बहुत गहरा हमें मैसेज मिलता है। वहां पर पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ जी? शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से जी? बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और मैं कलीसिया में अक्सर दुआ के तलक से देखता हूँ कि जो बहुत से बेटे बेटियां दुआ का आगाज कैसे करते हैं? यीशु बाप। किससे करते हैं? यीशु बाप। जो दुआ गलत है, जो ऊपर नहीं जाएगी। वसीला यीशु है, बाप यीशु नहीं है। ये रूहुल कुदस तीसरा कुनूम है, और बेटा दूसरा कुनूम है, और बाप पहला कुनूम है। इसलिए मेरे जो आप दुआ करें तो खुदा बाप के नाम से शुरू करें और बेटे के नाम से मांगे, क्योंकि यीशु ने कहा था जो दुआ मेरे नाम से मांगी जाएगी वो सुनी जाएगी। अगर यीशु ही बाप है, यीशु ही बेटा है, तो फिर समझने वाले वास्ते बड़ी गलत वजह का सवाब बनी। इसीलिए मेरे दो एक कलाम तरतीब बताता है, बाप कौन है, बेटा कौन है, और रूहुल कुदस कौन है। इसलिए आगे लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो
میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ کیا ہوں جی تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. اس لیے وہ ہمارا تعلق بادشاہی سے جوڑتا ہے. کس سے جوڑتا ہے؟ بادشاہی سے جوڑتا ہے. لیکن آج ہم اپنے معیار کو نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا معیار کہاں پر ہے. ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. کلیسیا کا لفظی مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ. کیا ہے جی؟ الگ کیے ہوئے لوگ. اس لیے میرے جو پہلا پطرس 2 اس کی 9 آیت پڑھیں تو میرے جو وہاں لکھتے ہیں کہ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل. کیا نسل؟ برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص مملکت. آمین. اور آگے لکھا تھا کہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. کیا ظاہر کرو جی؟ خوبیاں ظاہر کرو. اور جس نے تمہیں طریقے سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. تو میرے زدو تم صرف جمع ہونے والی جماعت نہیں، تم شاہی کہانت کے ممبر. آمین. اور زمین پر آسمان کی حکومت تمہارے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. یسوع نے کیا کہا تھا کہ تم دنیا کے کیا ہو جی؟ نور ہو. ہاللیلویا. نور کیسا نظر آئے گا؟ جب ہمارے کام نظر آئیں گے، جمع میں رویے ہمارے نظر آئیں گے. اگر یسوع ہمارے اندر ہے تو پھر اگر وہ شیلو ہے، اس کی بادشاہی اگر آپ نے اپنے دل کے اندر رکھ چھوڑی ہے تو پھر ایک دن ہے کہ آپ زمین پر جلال ظاہر کریں. کس کا؟ یسوع کا جلال ظاہر. آمین. میں نے پہلے بتایا کہ گناہ آپ کے دل پر کیا کرتا ہے؟ بادشاہی کرتا ہے. باغ کے اندر کیا ہوا تھا؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، ان کو اپنا ننگ یاد آیا. ان کو ننگ نظر آ رہا تھا. جب میرا زیدو گناہ آپ کے بدن کے اندر آئے گا، آپ کو ننگا کرے گا، شرمندہ کرے گا، خوف زدہ کرے گا. اس لیے آدم کو پوچھنا پڑا، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے. ہاللیلویا. یہ ٹاپک اور چلا جائے گا، لیکن اس نے ڈر کے ساتھ کہا اور میں یہاں. میں کیا ہوں؟ یہاں. پوچھنا پڑا خدا کو. لیکن جب گناہ آپ کے بدن کے اندر نہیں ہوگا، یسوع آپ کے بدن کے اندر ہوئے گا اور شیلو آپ کے ساتھ رہے گا، تو پھر یسوع کو یہ پوچھنا نہیں پڑے گا بیٹا تو کہاں ہے، بلکہ بیٹا خود کہے گا اے باپ، اے خداوند، تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. آمین. اس لیے میرے سے تو جب انسان اپنا مقصد نہیں جانتا تو عبادت رسم بن جاتی ہے. عبادت کیا بنتی ہے؟ رسم بن جاتی ہے. جس طرح امثال کی کتاب 29 اس کی 18 پڑھے تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے یہاں رویا نہیں، وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. وہاں لوگ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ بے قید ہو جاتے ہیں. لیکن جب مقصد واضح ہو تو قربانی بھی خوشی بن جاتی ہے. قربانی بھی خوشی بن جاتی ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ تم اسی بادشاہی میں اسی مقصد کے ساتھ زمین پر جیو. آمین. تو میرے سے تو شیلو نجات آفتوں کے دروازہ پر کھڑا ہو کر بھی کھٹکھٹاتا ہے. اور مکاشفہ 3 اس کی 20 آیت میں کہتا ہے کہ دیکھو میں دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نجات کے بعد بھی دل تبدیل ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، نفرت ہو سکتی ہے، بدی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، معافی مانگیں گے، خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. تو وہ آج وہ کہتا ہے کہ مجھے اندر آنے دو. کیا آنے دو؟ اندر آنے دو. سوچے ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ تو سمجھتے ہیں، لیکن کیا واقعہ فرما بردار بھی ہے؟ لازر کی قبر کے پاس یسوع گیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پتھر کو کیا کرو؟ پتھر کو کیا کرو؟ ہٹاؤ. تو جو انسانوں کا کام ہے وہ خدا دیتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ. آج پتھر سینے سے ہٹائیں، دلوں سے ہٹائیں، نفرت ہٹائیں، بدیاں ہٹائیں، اور آپ کا مردہ دل خدا پھر زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آمین. اور اس نے لازر کو کیا کہا؟ اے لازر باہر آ جا. اے لازر باہر آ جا. لیکن باہر آنے سے پہلے اس نے ایک بات کہی ہے. اس نے شکر گزاری. اس نے کیا کی؟ شکر گزاری کی. بیماری اگر آپ کے اندر ہے، گناہ اگر آپ کے اندر ہے تو شکر گزاری کرے. خدا میں تیرے پاک لہو کے وسیلہ سے میں چنگی ہو جاؤں گا، چنگا ہو جاؤں. آمین. میرے تیرے لہو کے وسیلہ سے میرا پاپ دھل جائے گا، شمع ہو جائے گا. اور جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو شروع آپ کے دل کے اندر آ کر بادشاہی کرنا شروع کر.
आमीन। तो मेरे से तो हम अपने आप को निजात याफ्ता तो समझते हैं, लेकिन अगर आप वाकया फर्मा बरदार भी हैं और कहें कि हम खून के नीचे तो आगे हैं, लेकिन क्या हम तख्त के नीचे भी आगे हैं? क्या हम उसके ताबेदारी के नीचे भी हैं? क्योंकि बहुत से लोग सलीब को मानते हैं लेकिन तख्त से डरते हैं। तख्त का मतलब है ताबेदारी। क्या है जी? ताबेदारी से डरते हैं। हम निजात चाहते हैं लेकिन हुकूमत खुद करना चाहते हैं। हुकूमत खुद करना चाहते हैं। हम यीशु को मनजी मानते हैं लेकिन बादशाह मानते नहीं हैं। बादशाह नहीं मानते हैं, हिचकते हैं। और मेरे से तो अगर हमारा रवैया यही रहा तो मेरे से तो एक दिन आएगा कि हम इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए मेरे से तो वक्त खत्म हो जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वक्त को गनीमत जानो दिन बुरे। आमीन। तो मेरे से तो बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु को खुदा का बेटा अगर मानते हो तो फिर वो बादशाही कैसे कर सकता है? क्या खुदा बेटा जान सकता है? तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का जिस्मानी और तलीटी बेटा नहीं मानते। हम क्या नहीं मानते? दो बातें मैंने कही हैं कि हम यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का जिस्मानी और तलीटी बेटा नहीं मानते हैं। हम यीशु खुदावंद को खुदा का अजली और रूहानी और शाही बेटा मानते हैं। क्या मानते हैं? शाही बेटा मानते हैं। वो अजल से बाप के साथ होने की वजह से बाप का बेटा है। आमीन। वो रोह कुदस की कुदरत के वसीला से पैदा होने के सबब से खुदा का बेटा है। वो बादशाही के कलाम के लिए रोह कुदस से मस्सा के सबब से खुदा का बेटा है। और मेटाफोरिक मैनियों में इस्तेमाल मेरे से तो हो रहा है कि मेरे से तो ईरान के इलाका में अगर हम जाए, तुर्की के इलाका में, तो वहां पर शहर हमारबी था और उसने ये दावा किया था कि देवताओं की कौंसिल ने मुझे चुना है और ऐलान किया कि मैं बाबल का बादशाह हूँ। किसका बादशाह हूँ? बाबल का बादशाह हूँ। इसी तरह मिस्री बादशाहों में भी ये तस्वर था कि देवता उनके बादशाह होने का ऐलान करते हैं, मगर मेरे से तो फरमान जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर पुराने और नए आदनामा में बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के बादशाह होने का फरमान कोई देवता या कोई देवी नहीं करता, कोई बुत या मूर्त नहीं करती, बल्कि खालिक अजली और अब्दी अफजल तरीन और जीम तरीन खालिक और रिज़्क लाल बादशाह यहोवा खुद करता है। वो कहता है कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। तो मेरे से तो आखिर में यही कहूंगा कि अगर आप गुनाह से समझौता करके जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर वक्त है कि आप गुनाह से तौबा करें। किससे करें? गुनाह से तौबा करें। शिलोह को अपने दिल का बादशाह माने, उसके तख्त के नीचे आए, बदी को छोड़े और यीशु को अपना जलाली और निजात दहिंदा माने कि यीशु ने आपके लिए कम 40 घोड़े खाए हैं, मेरे लिए आपके लिए उसके मुंह पर थूका गया है, उसने भारी सलीब उठाई है। अगर वो समाज को छोड़कर जमीन पर ना आता, अगर वो जलाल से अपने आप को खाली ना करता, अपने आप को हमेशा की जिंदगी से खाली ना करता, इख्तियार से खाली ना करता, तो यहूदा इस्करियोती क्या उसको बोसा लेकर पकड़वा सकता? नहीं पकड़वा सकता। और आज बहुत से लोग खादम भी खादमों को ऐसे करते हैं कि अगर आप दवा करते हैं तो कलीसिया से लेर होना शुरू हो जाती है। बाइबल में कदस के अंदर कहाँ वाला लिखा है कि यीशु ने किसी को ऐसे किया? अगर हम यहूदा इस्करियोती की कहानी पढ़े आप, यहाँ पर उसने बोसा लिया तो उसने कहा कि हम तू जो काम करना चाहता है जल्द कर ले। तो वहां पर उसने कहा किसको पकड़ने आया हो? उसका यीशु को। तो कहता मैं मुझे पकड़ लो। तो उसने ये बात कही तो सारी पलटन गिर पड़ी। पलटन के अंदर पता है कितने बंदे? 600। कितना? 600। छोटी पलटन जो मेरे फौजी की फौज के लिए इस्तेमाल होती है, 600 आदमी होते हैं उसके अंदर, और सब जमीन पर गिर पड़े। ये यीशु की कुदरत है, ये कलाम की कुदरत है। आज भी शैतान मेरे से दो उस कलाम क्या ठहर नहीं सकता। यीशु का नाम लेकर इख्तियार हमारे पास है। हम शैतान को डरा सकते हैं, भगा सकते हैं और उसके लिए मिन्नत कर सकते हैं बदनों के लिए, ताकि यीशु उन बदन को रहाई दे। आमीन। अगर हम लूका की इंजील पढ़े तो वहां पर एक इख्तियार छुपा हुआ है। उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर क्या? आमीन। और देखो
کہ تمہیں کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا, تمہیں کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا. اور جب میں دعا کر کے رات کو 1 بجے سویا تو میں نے رویا میں وہ بہن کے لیے بھی دعائیں کی, بہت سی دعائیں لوگوں کے لیے کی, اور میں نے رات کو بے شمار ایسے جنہوں پنجابی کے اندر ٹھوئے, ٹھیک ہے نا, ٹھوئے میں نے زمین پر ایسے ٹھوئے نہیں کبھی دیکھے, لیکن بہت سے ٹھوئے میں نے وہاں پر مارے, بے شمار ٹھوئے تھے. اور میں رویا میں دیکھ رہا تو میں بہت سی اونچی بلندی پر سیر کر رہا ہوں, اور بہت سی ایسی چیزیں میرے ہاتھ میں آ رہی, میں اس کو توڑ رہا ہوں, پھینک رہا ہوں, اور بہت سی ایسی گندی طاقتوں کا میں نے مقابلہ کیا. مقابلہ کون کرنے کی طاقت دیتا ہے؟ یسوع, جو شلو ہے, جو طاقت کا منبع ہے. اس لیے یعقوب اگر اپنے بیٹوں کو برکت دے رہا تھا تو وہ میرے جو ماضی کو نہیں بلکہ مستقبل کو دیکھ رہا تھا, آنے والے حالات کو دیکھ رہا تھا. کیونکہ آج بھی اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو برکت دے تو ماں باپ کو روحانی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اگر بادشاہ روحانی ہے تو خدا روحانی ہے, تو اس کے لوگ بھی روحانی ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہفتے کے بعد ہم چرچ آ جائیں, 2 گھنٹے کی عبادت اٹینڈ کرے, اور 6 ہفتے ہم شراب پیئیں, چرس پیئیں, اور بدگوئیاں کریں, جھوٹی باتیں کہیں. خدا یہ نہیں چاہتا, بلکہ خدا کہتا میں پاک ہوں تم بھی پاک بن. اگر ہم یہ تو بہت کہتے ہیں کہ خداوند میری بیماری چھوٹی ہے, تو میرا بڑا خدا ہے, تو پھر یہ بھی ہے کہ خداوند تو میرے دل کا مالک ہے, میں تیرا پیدا کرتا ہوا انسان ہوں, تو مجھ پر رحم کر. دیکھیں جس طرح آپ کہیں گے تو میرے دل وہ بیماری جاتی ہے. آمین. 12 برس کی عورت نے اس کا پلو چھوا تو کیا وہ تندرست نہیں ہوئی؟ ہو چکی تھی, وہ تندرست شفا پا چکی تھی, لیکن کو برائی ہوئی تھی. لیکن یسوع نے کہا کہ مجھ میں کیا نکلی, قوت نکلی ہے, تو وہ ڈرتے آئی اور اس نے اقرار کیا. اس نے کہا کہ میرے اندر بہت سی ایسی باتیں وہاں پر نہیں لکھی بائبل کے اندر, لیکن ہو سکتا ہے اس نے بہت سی باتیں کہی ہوں. اور یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے اچھا کیا. اور بہت سے ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے کال پر مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے, نزدیک ہے, گھروں کے نزدیک ہے, لیکن یہاں آنے کی نہیں خاطر رکھتے, اور مجھے کہتے ہیں ہمارے گھر آ کر ہم سے دعا کرے, میرے اوپر دعا کرے, میں شفا پا جاؤں گی. میرے سے تو شفا اس وقت ملے گی جب کنویں کے پیاس پیاسا آ کر خود پانے. آمین. اور یسوع نے کہا تھا کہ دیکھو دنیا کا حقیقی فرزند میں ہوں, اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں. آمین. اگر آپ انگور کے درخت کے پاس آ کر اس کی حضوری میں رہیں گے تو ضرور آپ اس کے ٹیسٹ کو بھی چیک کر سکتے ہیں. آمین. اس لیے آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے, اور میں چاہوں گا آپ